Hello and welcome to Your Engineer. In this video we will see everything about GATE Aerospace Engineering. What are the subjects, what are the exam pattern and whole things, what is new in GATE 2021. Okay, so let me tell you that in GATE Aerospace Engineering the total marks is 100. The total time taken is 3 hours. Out of 100 marks, 85 marks is from core section, while general aptitude covers the rest 15 marks. In general aptitude, it's verbal ability, data interpretation, logical reasoning and other reasoning questions. So let's discuss all those things. In verbal ability, the main emphasis is on the questions of English. Okay, English grammar or comprehension writing, all those questions are from verbal ability. From data interpretation, there will be a particular data, a graph or something like that will be given, and based on that data you have to solve a question, you have to answer a question. Maybe that question is of numerical answer type or maybe it's of multiple choice type. Next is logical reasoning. Logical reasoning or LR is a particular type of question where you have given some statements and on the basis of those statements you have to retrieve the answers. You have to get on to a particular conclusion. That's logical reasoning. In other reasoning questions, it may be speed, distance, time, age factor or many other things like blood relation, or any type of question can come in other reasoning questions. So in aptitude there will be 15 marks. In 15 marks it will be 5 questions of 1 marks plus 5 question of 2 marks. That will be 15 marks. For core sections there are 6 subjects: aerodynamics, propulsion, structures, flight mechanics, space mechanics and mathematics. तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, एरोडायनेमिक्स है, प्रोपल्शन, स्ट्रक्चर, फ्लाइट मैकेनिक्स, स्पेस मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स, इन क्वेश्चंस, इन पूरे सब्जेक्ट्स को मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं, और दोनों कंक्लूड करके 85 मार्क्स के आते हैं. जिसमें से एक चीज़ कंपल्सरी है, वो ये है आपकी मैथमेटिक्स. फ्रॉम मैथमेटिक्स देर आर फिक्स 10 क्वेश्चंस एंड ऑन द सेम थिंग, लाइक 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 5 ऑफ 2 मार्क्स. तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के कंपलसरी क्वेश्चन है जनरल एप्टीट्यूड के. अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड और आपका मैथमेटिक्स भी क्लियर है तो ये बहुत बड़ी इन्हांसमेंट होती है. सिंस यू आर एरोनॉटिकल इंजीनियर और यू आर एरोस्पेस इंजीनियर, लेकिन आपका मैथमेटिक्स अगर अच्छा है और आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो आपके मार्क्स में जो डिफरेंस आता है, जो रैंक में डिफरेंस आता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका डिसीजन मेकिंग पावर किस में होती है, मैथमेटिक्स में और एप्टीट्यूड में. क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सारे लोग पढ़े होते हैं, लेकिन जिसका ये भी स्ट्रांग हो और ये भी स्ट्रांग हो उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, उसकी रैंक बढ़ जाती है. सो लेट्स सी एरोडायनेमिक्स. एरोडायनेमिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं. इन एरोडायनेमिक्स देयर आर बेसिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. What is pressure, what is density, how the flows are there, various types of potential flow जैसे uniform flow, source flow, sink flow और non-rotating cylinders, corner flows and other flows like viscous flows. अब इसमें भी 2 तरह की एरोडायनेमिक्स है, इनकम्प्रेसिबल एरोडायनेमिक्स और कंप्रेसिबल एरोडायनेमिक्स. When you go into compressible aerodynamics, there will be Mach number, normal shock wave, oblique shock wave, Prandtl-Meyer relation, expansion fans. So these are the things that we study in aerodynamics, as well as wind tunnel techniques and some questions from linearization of flows are also there. So aerodynamics probably covers a good percentage in GATE Aerospace Engineering. Out of these 25 plus 30, out of these 55 questions, there are many questions which is from aerodynamics. Okay, this 55 questions from core section. Out of that there are many questions, around 10 to 15 questions are from aerodynamics, a large amount of questions from aerodynamics. The second thing which is very important in GATE Aerospace Engineering is flight mechanics. In flight mechanics, we have to study the atmosphere, like on what altitude, what will be the pressure, what will be the density, what will be the temperature at that particular thing. So we study lapse rate, we study many things such as there are 2 types of atmosphere layers. One is isothermal and the another is which is not isothermal. So in one particular layer the temperature remains same, then in another the temperature changes. So there are 2 particular types of things we study. So the first thing is atmosphere in flight mechanics, then we move into the aircraft performance. In aircraft performance हम क्या पढ़ते हैं कि thrust required, how much thrust is required to fly an aircraft, how much power is required to fly an aircraft, how much minimum power required, what is the minimum power required condition, what is the minimum thrust required condition.
और एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि रेंज क्या होती है, एंड्योरेंस क्या होता है। जैसे मैं अभी आपको बता दूं, अगर एक एयरक्राफ्ट एक फुल टैंक पे है तो फुल टैंक में हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, दैट्स कॉल्ड रेंज। एक फुल टैंक पे हाउ मच टाइम इट कैन स्टे इन द एयर, दैट्स कॉल्ड एंड्योरेंस। और रेंज और एंड्योरेंस के जो डेरिवेशन होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो गेट में हर बार हर टाइम पर आते हैं। अच्छा, रेंज और एंड्योरेंस के ब्रोगेट फार्मूलाज होते हैं जो हम जेट प्रपोल्शन के लिए अलग पढ़ते हैं और नॉर्मल प्रपोल्शन के लिए अलग पढ़ते हैं। लाइक अगर जेट इंजन है और एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन है तो दोनों के लिए रेंज और एंड्योरेंस डिफरेंट होती है। तो ये फार्मूलेज भी कॉम्प्लेक्स है। और परफॉर्मेंस में हमें ये भी चाहिए होता है कि आपकी लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस कितनी है, कितना रनवे लेंथ चाहिए होता है आपको लिफ्ट ऑफ करने के लिए, कितना रेंज आप कर सकते हो एक बार ग्लाइड करना हो आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस यानी फ्लाइट मैकेनिक्स में। ठीक है, तो ये सारा परफॉर्मेंस सिस्टम है। इसके बाद आपकी आती है स्टेबिलिटी और कंट्रोल। स्टेबिलिटी में 3 चीज़ें होती हैं, रोल, पिच और यॉ। लाइक व्हेन एयरक्राफ्ट रोल्स about vertical axis, it's called yaw. When aircraft rolls about the horizontal axis, which is called longitudinal axis, it's called roll. When it's rolling about lateral axis, it's called pitch. तो रोल कर रही है, यॉ कर रही है, पिच कर रही है, ये सारी स्टेबिलिटी, इन सब का कंट्रोल भी हम करते हैं फ्लाइट मैकेनिक्स में। ठीक है, और ये स्पेशल टॉपिक्स हैं बिकॉज जो रडर कंट्रोल होता है और जो आपका साइड स्लिप एंगल का कंट्रोल होता है जिसे हम रोल कंट्रोल करते हैं, तो रोल स्टेबिलिटी और आपकी रडर स्टेबिलिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ते हैं हम फ्लाइट मैकेनिक्स में। तो फ्लाइट मैकेनिक्स के लिए इसीलिए इस पर्टिकुलर गेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग का जो कोर्स चल रहा है आपका, क्रैक गेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 100 डेज, उसमें 24 लेक्चर्स हैं फ्लाइट मैकेनिक्स से, जो अब तक की मैक्सिमम है। उसमें सारे सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम लेक्चर किसके, फ्लाइट मैकेनिक्स के। तो फ्लाइट मैकेनिक्स में आपके ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस टू 20 क्वेश्चन, 15 to 18 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ओके, रेस्ट आपका जो प्रपल्शन है, स्ट्रक्चर्स है, स्पेस मैकेनिक्स है। स्पेस मैकेनिक्स में हाईएस्ट देयर विल बी 3 to 4 क्वेश्चंस। स्पेस मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं हम कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना है, प्लस हॉफमैन ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है। हॉफमैन ट्रांसफर थ्योरम ये होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर ट्रांसफर करते हो तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एडजस्टमेंट, कि वेलोसिटी कहाँ बढ़ानी है, कहाँ वेलोसिटी कम करनी है। ठीक है, एपोजी क्या होता है, पेरिजी क्या होता है, ये सारा सिस्टम आपका स्पेस मैकेनिक्स में होता है। एक चीज़ होती है ट्रू एनॉमली, ट्रू एनॉमली भी स्पेस मैकेनिक्स का पार्ट है। तो स्पेस मैकेनिक्स का सिलेबस छोटा है, इसमें 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज बेस्ड भी आ जाते हैं, केपलर्स लॉ वगैरह पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट्स, तो इन चीज़ों पर भी आपके क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर्स में क्या आता है आपका, स्ट्रक्चर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रॉन्ग है, उससे पहले आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है, तो आपका एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स में हम थिन वॉल्ड सेक्शंस यूज़ करते हैं। ओके, सोम का एक बेसिक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी आपकी एनालॉगी कह लीजिए कि जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम पढ़ते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, बेंडिंग, टॉर्जन, बकलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें कंक्लूड करने के साथ इसके एडवांस वर्जन पढ़ते हैं एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में। ओके, इसके साथ साथ हमें थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस भी देखना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन भी एक अच्छा वेटेज रखता है स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस में। सो फ्रॉम स्ट्रक्चर्स देयर विल बी 10 to 12 क्वेश्चंस। ओके, प्रपल्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपकी थर्मोडायनेमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो अगर आपकी थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपके प्रपल्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जैसे आपकी ब्रेटन साइकिल है, ऑटो साइकिल है, और क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं हम। एयरक्राफ्ट इंजन में जो गैस टरबाइन इंजन होता है उसके अंदर जो टर्बो मशीनरी होती है, जैसे कंप्रेसर हुआ, टरबाइन हुआ, नोजल हुआ, सो वी हैव टू स्टडी दीज थिंग्स एज वेल एज द कंबशन चैम्बर फैसिलिटीज़, आफ्टर बर्नर थिंग। So we have to study all those things in propulsion. Other than that, we have to study rocket propulsion also. जैसे रॉकेट propulsion एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको आपके थ्रस्ट इक्वेशन आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ आएगी कि कितना पेलोड होना चाहिए, कितना पर्टिकुलर सैटेलाइट ले जा सकती है पेलोड, तो उसके लिए कितना फ्यूल रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूल टू एयर रेशियो होगा, स्पेसिफिक इम्पल्स होगा। एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी भी हम देखते हैं प्रपल्शन में, रॉकेट मैकेनिक्स में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रपल्शन में पढ़ेंगे। फ्रॉम प्रपल्शन यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट 10 to 12 क्वेश्चंस। सो द मेजर थिंग हियर इज एरोडायनेमिक्स एंड फ्लाइट मैकेनिक्स। जिसका ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर कर जाता है। जो सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ट्रिकी होता है। बट इफ़ योर बेसिक्स इज स्ट्रॉन्ग, अगर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका एरोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपका प्रपल्शन स्ट्रॉन्ग होगा,
अगर आपका सोम स्ट्रांग है तो आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, अगर आपका एरोडायनेमिक्स स्ट्रांग है तो आपका फ्लाइट मैकेनिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। स्पेस मैकेनिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको सिर्फ वेक्टर्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैथमेटिक्स में आपकी मैट्रिसेस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड्स में जैसे रेगुलर फाल्सी मेथड हो गया, आपका ये न्यूटन रैप्सन मेथड है, रंगे कुत्ता मेथड है, ये सारे मेथड्स जो होते हैं वी यूज़ दोज मेथड्स। और मैथमेटिक्स में वेक्टर कैलकुलस एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है, जिसमें कर्ल है, डाइवर्जेंस है, गॉस थ्योरम है, तो ये सारे के सारे थ्योरम्स, सारे के सारे फॉर्मूलेज वी यूज़ इन मैथमेटिक्स। ओके, तो ये टोटल थिंग है विच इज़ ऑल अबाउट एरोस्पेस इंजीनियरिंग, गेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो मोस्ट प्रोबेबली जो फर्स्ट पेपर होता है गेट का वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पेपर हमारा ऑलमोस्ट टेंटेटिव डेट आप कह लीजिए, जो पहली डेट है 5 फरवरी, तो 5 फरवरी 2021 है। और योर इंजीनियर ने एक कोर्स स्टार्ट किया है, क्रैक गेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 100 डेज। ये कोर्स आपको योर इंजीनियर की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, वहाँ आप जाके पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ये कोर्स 10 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है और 10 अक्टूबर से ये कोर्स 17 जनवरी आपका 100th डे है। उसका पूरा सेटअप है जिसमें आपको हर 3 डेज़ के बाद लाइव डाउट सेशन है और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे मिल रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और स्टे कनेक्टेड और ये चीज़ देख लीजिए कि आप लोग कैसे आप लोगों का गेट एरोस्पेस क्लियर होना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यू मस्ट गो थ्रू द कोर्स क्रैक गेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 100 डेज। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू योर इंजीनियर एरोस्पेस इंजीनियरिंग।